students, let's continue with lesson number 2, a gift of chappals in our English subject. In the previous video, I explained part 1. In this lesson, there are part 1 and 2, and part 1 is already explained. And today, before we go ahead with part 2, let's solve the question answers from part 1. Comprehension checked. There are 5 question answers. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? वो क्या सीक्रेट था जो मीना ने मृदु के साथ शेयर किया? Okay, let's see the answer. That Meena shares the secret of the kitten that they have found in front of their house and have kept in their backyard. Second question. How does Ravi get milk from the kitten? Ravi brings milk from the kitchen, saying that he was feeling hungry. He even drinks most of it to prove Pati that he was indeed hungry. And he then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. Third question. Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Ancestors means Purvaj. Ravi said that the kitten's ancestors were the lion of the Pallav kings, the Mahabalipuram Rishi cat, which has the emblem of the Pallav dynasty. Fourth question. Ravi has a lot to say about MP Punnai. MP Punnai is the name of the kitten, and this shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. As Ravi has a lot to say about MP Punnai, and this shows that his knowledge of history is sound. He has rich imagination and he is an intelligent child. These 3 points shows that he has a lot to say about MP Punnai. Now, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? What was the noise? It was the sound coming out of Lalli's violin that startled Mridu and frightened Mahendran. Okay, let's start part 2. Mridu crept up to the window. मृदु विंडो के साइड यहाँ पे आती है. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, and her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. And in front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. You can see her Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, and her elbow jutting out means come out, and her eyes glazed with concentration, जैसे वो एकदम concentration के साथ जो violin बजा रही है. And in front of her, उनके सामने, with most of his back to the window, कि जिनकी back window की तरफ थी, was the bony figure of a music master. Bony figure means एकदम से पतले से जो music master बैठे थे. He had a mostly bald head. He had a bald head. उनके सिर पर बाल नहीं थे, तो it has a bald head with a fring of oiled black hair. उनके जो black hair जो एकदम oiled किए हुए थे, और around his ears and an old fashioned tuft. Here old fashioned tuft जैसे चोटी बनाई हुई थी. Tuft means like a bunch. A gold chain gleamed around his leathery neck. उनके neck में, उनके गले में एक leathery neck कहा गया है. वहाँ पे एक gold chain उन्होंने पहनी हुई थी, चमक रही थी. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. जैसे वो violin बजा रहे थे तो उनके जो हैंड में, हाथ में उन्होंने जो डायमंड रिंग पहनी हुई थी, तो इट ग्लिडेड अप एंड डाउन. ग्लिडेड मीन्स मूव अलॉन्ग स्मूथली. वो स्मूथली ऐसे मूव कर रही थी जैसे ही वो वायलिन बजा रहे थे. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम हिज बेनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी. वेस्टी मीन्स धोती.
तमिल में उसे वेस्टी कहा जाता है, जिस मीन्स धोती। जो उन्होंने धोती पहनी थी विच इज़ गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज, वेस्टी एज, तो गोल्ड बॉर्डर थी उसकी, उनकी धोती थी। तो उनके नीचे से जैसे उनका एक फूट, जो बड़ा सा लार्ज फूट वो दिखाई दे रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टोर, उनके जो बिग टोज थे, स्क्रोनी बिग टोज, स्क्रोनी मीन्स जैसे एकदम वीक से, स्लेंडर से उनके जो टोज थे, उनसे वो जैसे फ्लोर पर ऐसे बीट कर रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने थोड़ा बजाया। एंड लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और जो लल्ली थी वो भी उनके जैसे बजाने का ट्राई कर रही थी। स्टम्बल मीन्स फॉलोड हॉल्टिंगली, जैसे उनके मास्टर, वायलिन मास्टर बजा रहे थे वैसे ही लल्ली भी कोशिश कर रही थी बजाने के लिए। एंड विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody, and it was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. कितना फ़र्क है। तो म्यूज़िक मास्टर्स जैसे बजा रहे थे एकदम परफेक्टली सा, into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train, जैसे ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो स्मूथली जैसे रेल की पटरी पर चल रहे होते हैं, वैसे ही जो म्यूज़िक मास्टर थी वो वायलिन बजा रही थी एकदम से परफेक्टली, जैसे रवि कहता था। एंड मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज bearinged means the music master is wearing a ring, is bearing। तो मृदु स्टैड एट द ह्यूज bearinged हैंड, मृदु ये जो उनके हैंड थे वहाँ पे देख रही थी एकदम स्टैड। एंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टैम्प, जैसे वायलिन स्टैम्प पे एकदम से जैसे वायलिन ऐसे वो बजा रहे थे। एंड मेकिंग लवली म्यूज़िक, एकदम लवली म्यूज़िक वो बजा रहे थे। स्क्वैक, देयर वाज लल्ली डी रेलिंग अगेन, और यहाँ पे एक आवाज़ आई स्क्वैक, जैसे कि लल्ली की जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई, वो अच्छे से नहीं बजा रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओह हियर वेल, वेल मीन्स a shout, एक आवाज़ सी आई, अम्मा अम्मा। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda। जो रवि की मदर थी वो पीछे के वरांडा से उन्होंने बोला कि send that beggar away, वो जो बैगर आया हुआ है उसे कहीं और भेज दे। Where she was chatting with तापी, जो रवि की मदर थी वो तापी मीन्स जो मृदु की ग्रैंड मदर थी उनके साथ बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि सेंड द बैगर अवे, बैगर को भेज दो वापस। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले वीक से हर रोज़ आता है यहाँ पे। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और उसे दूसरे घर जाना चाहिए अब बैगिंग के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, ये पाती इज ऑल्सो द वर्ड फॉर ग्रैंड मदर। एंड पाती एक्सप्लेन टू तापी। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और रवि बाहर जाता है तो मृदु एंड मीना भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर कहाँ पे थे, गार्डन में। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री, वहाँ पे वो गार्डन में आके उसने अपना जो क्लोथ था वो नीम ट्री के नीचे उसने स्प्रेड किया, और वो एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक एंड अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नूज, उसने वहाँ पे आराम करने के लिए सोचा। स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप, टू टेक शॉर्ट स्लीप। ही स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, वो उसके जो ट्रंक था नीम ट्री का उसके नज़दीक वो जैसे कि थोड़ा सोने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ यहाँ पे सोया। एंड वाइल ही वेटेड फॉर द एम्स टू अपीयर, गो अवे सेड रवि
sternly. Here sternly means strongly. वो एल्म के लिए, दान के लिए जो वो वेट कर रहा था, वो जो बैगर था, उसके पहले रवि ने कहा कि गो अवे फ्रॉम हियर, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पाती ने कहा है कि अब तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए बैगिंग के लिए। द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। जो बैगर था, बैगर मीन्स भिखारी, तो उस ये सुन के उसकी आईज जैसे वाइड हो गई। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और वो हर एक चिल्ड्रन को, चाइल्ड को ऐसे देख रहा था वन बाय वन। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. इस घर की जो लेडीज़ है वो तो बहुत ही काइंड है। वो एकदम फीलिंग्स के साथ बोला। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी। हियर केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स managed to stay alive. So I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. मैं तो ऐसा नहीं बिलीव कर सकता कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। जैसे कि उन्हीं की दया से तो मैं जी रहा हूँ, तो मुझे नहीं विश्वास होता कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। He raised his voice. अम्मा अम्मा, ओह, उसने फिर से आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा। Said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. We will continue with this paragraph in the next session. Thank you.